Hello and welcome students. Welcome to Revision at Adda lecture series by Optimum Educators. Friends, I am Professor Salman Petiwala, mechanical engineer from IIT Madras gold medalist, and we have a 15-minute revision adda for you in which we will discuss and revise the chapter in 15 minutes. Okay, so the objective of this video is to quickly revise what you all have studied. Exam नजदीक आ रहे हैं, रिविजन करना बहुत जरूरी है. हम कम टाइम में हमें पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज करना है. माइंड यू रिमेंबर कि ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है. आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो यू कैन फाइंड दैट और यू कैन परचेज दैट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, and also you can purchase the complete syllabus. So let's make a beginning. Let's start studying or revising the chapter number 2 of our maths 1 standard 10 syllabus, that is quadratic equation. So guys, ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या रिवाइज करना है आपको पता है. ये चैप्टर में हमारे पास दो एक्सरसाइजेज है. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दीज टू कंसेप्ट्स. टोटल 3 कंसेप्ट है. फर्स्ट 2 कंसेप्ट से बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, and the second concept is root of quadratic equation. Okay, उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. सो वी लर्न फैक्टराइजेशन एंड फ्रॉम फैक्टराइजेशन वी विल सी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा फाइंड किया जाता है. कम ऑन, लेट्स मेक अ स्टार्ट. सो दोस्तों, starting our first concept out here, so we need to study what is the standard form, right? Yeah, first of all, what is a quadratic equation? So quadratic equation, guys, remember that. I'll give you an example. Let's say this one, x square plus 5x plus 6 equal to 0. This is an example of a quadratic equation. Now what do you mean by quadratic equation? Quadratic equation वो होता है guys जिसमें जो variable होता है, यानी for example in this case the variable is x, right? X is your variable. जो variable है उसका maximum power should be 2. Okay, so 2 is the maximum power. So I can say power of x is 2. So therefore this is a quadratic equation in one variable, right? How many variables are there? One variable x. मुझे एक एग्जांपल दो. This is a quadratic equation. मैं इसे कहता हूँ QE. This is a quadratic equation. एक एग्जांपल लेते हैं. Let's say x cube plus x plus 2 equal to 0. Is this a quadratic equation? The answer will be no. This is not a quadratic equation. Why? Because इसका power कितना है? The power is 3, right? Quadratic equation मतलब the maximum power should be 2, not 3. यहाँ 3 हो गया तो ये quadratic equation अब नहीं रहेगा. Fine. Now with that, after identification of your quadratic equation, what is the standard form? So how is it represented? The standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमारा standard तरीका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, where what are a b and c they are constants. Okay, ये हमारे constants है. So remember, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. फाइन. ओके दोस्तों, सो इस तरह से हम अपनी फर्स्ट पार्ट को हमने रिवाइज किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होते क्या है, राइट? नेक्स्ट कंसेप्ट गाइस इज द कंसेप्ट ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वहां पर एक चीज हम पढ़ेंगे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. रूट ऑफ quadratic equation. For example, अगर कहा जाए कि x equal to 2 is the root of one quadratic equation. एक quadratic equation let's say मेरे पास है x square plus 2x, okay, x square plus 2x minus 8 equal to 0. अगर ये x equal to 2 अगर इसका रूट है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसका? इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, देन इट शुड सैटिस्फाई द इक्वेशन. रिमेंबर, अगर रूट है तो वो उसे क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा. सैटिस्फाई मतलब क्या? x की जगह पे अगर मैं वो वैल्यू रख के देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच होने चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर x की जगह पे 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, फिर से x की जगह पे मैंने क्या रख रहा हूं 2 माइनस 8 इक्वल टू 0. 2 square is 4 guys. 2 into 2 is also 4. 4 plus 4 is 8. So 8 minus 8. So 8 minus 8 is 0. So 0 equal to 0. मतलब ये satisfy कर गया. Hence I can say this is the root. Okay. Let's quickly take one more example. अगर मैं कहूँ x equal to 3, is it a root of this equation x square plus 2x minus 7 equal to 0? Check करते हैं. तो x equal to 3 डालोगे तो x की जगह हो जाएगा 3 square. 2 into 3 minus 7 equal to 0. 3 square is 9. 2 into 3 is 6.
So 15 minus 7 equal to 0. That is 8 equal to 0. Is this true? The answer is no. 8 is not equal to 0, right? The answer will be not equal to 0. Hence, this is not a root. Right? बराबर. तो अगर root होगा तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा, इक्वल करेगा. फाइन. और इसी तरह से दोस्तों एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है कि हमें ऐसा एक इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है? Let's say I'll give you an example of an equation. 8x square plus x plus 4 equal to or minus 4 equal to 0. ये इक्वेशन ऐसा दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि x equal to 1 is the root. ओके, क्या कहा जाता है? x equal to 1 is the root. और मुझे कहा जाता है फाइंड k, ये k की वैल्यू निकालो. तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर रूट दिया जाता है ना, ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि x इक्वल टू 1 रूट है, तो हम क्या करेंगे? सीधा x इक्वल टू 1 रख देंगे, बस खत्म, क्योंकि सैटिस्फाई होना ही चाहिए और k निकालेंगे. ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन चलेगा. x की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0. ये कितना होता है दोस्तों? 1 स्क्वायर इज 1, 1 minus 4 is minus 3, so k into 1 is k minus 3 equal to 0, so k will be equal to how much? 3, right? K will be how much? Equal to 3. So दोस्तों इस तरह से कोई भी हम कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं अगर कोई रूट हमें दिया जाए तो. ठीक है, जो रूट दिया जाता है उसको ऊपर जाके रख देने का, बस खत्म, ज्यादा नहीं सोचने का. फाइन, फेयर इनफ. सो ये एक टाइप हो गया. सो इस तरह से हमने रूट वाला कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया. राइट, नाउ let's revise the last and the most important concept of the chapter, that is the method of factorization. Okay, we will do factorization and we'll find the solution of a quadratic equation. So we'll look into the last part of the revision series, that is the solution of a quadratic equation by factorization. हम factorization use करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो रिवाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं जल्दी से. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आपको अभी बना के दे रहा हूं, उसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज प्रीटी सिंपल. हमें क्या करना है? ये जो यहां पर जो नंबर है ना उसको लिखना है. ठीक है, अगर कुछ नहीं तो मतलब 1. सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला, ए और सी, उनको साइड में लेके जाके मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 into 12 को साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है 1 into 12 विल बी 12, राइट? सिंपल. अब फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं? इस 12 को हमें ऐसा तोड़ना है, ऐसे दो फैक्टर में मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं ताकि मुझे बीच का नंबर 7 मिल सके. ठीक है, इससे कहता है फैक्टराइजेशन. लेट्स स्टार्ट. तो द रूल इज वेरी सिंपल, 1 से चालू करने का. ओके, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12, राइट? क्या 1 और 12 को ऐड या सबट्रैक्ट करने से मुझे 7 मिलता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं मिलता है. कोई बात नहीं. नेक्स्ट 2 से चालू करो. 2 into 6 इज ऑल्सो 12, राइट? अब 2 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन, 2 ऐड करूंगा तो 10 मिलेगा, सबट्रैक्ट करूंगा तो 4 मिलेगा, 7 तो नहीं मिलने वाला, राइट? कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं दोस्तों. नेक्स्ट आफ्टर 2 विल बी 3, सो 3 into 4 इज विल बी 12, राइट? सो 3 4s are 12. मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से क्या मुझे 7 मिलता है? आप बोलोगे हाँ सर मिल गया, 3 + 4 is 7, राइट? तो हम क्या करेंगे? हमारे बीच वाले नंबर को स्प्लिट अप कर देंगे. ये ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर, 7 को मैं लिखूंगा 3 + 4x और ये 12 वैसा का वैसा, राइट? अब हम इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3x और 4x अलग अलग कर देंगे. तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट? फाइन, स्प्लिट अप समझ में आया. नाउ आफ्टर द स्प्लिट अप हम इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर और प्लस 3x में से x कॉमन है, तो दिस विल बी x प्लस 3, राइट? और यहां पर से 4 कॉमन है, तो दिस विल बी अगेन x प्लस 3, राइट? इक्वल टू 0, बराबर. 12 में से अगर मैं 4 निकाल दूं तो 4 3s are 12, राइट? तो चाहे तो एक स्टेप और कैसा लिख सकता हूं मैं? व्हाट आई कैन डू इज 12 को मैं जिस तरह से यहां पर 3 + 4 लिखे वैसी तरह 12 को लिख सकते 3 into 4, राइट? तो वो भी इशू नहीं है. 3 into 4, उसमें से जब 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3. ना आप देख सकते हो x + 3 है, तो 2 बार x + 3 है, मतलब उसमें से मैंने x + 3 कॉमन ले लिया. तो अब कॉमन ले लिया तो यहां से बचा x, यहां से बचा 4, राइट? सो देयरफॉर विद दिस यू सॉल्व योर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। समझ में आया दोस्तों, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो चुका है। अब पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब तो सिर्फ फैक्टराइज हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x+3 और x+4 को 0 के साथ अलग अलग इक्वेट करेंगे। तो पहले हो जाएगा x+3 इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x+4 इक्वल टू 0, फिर x3 इस तरफ आ जाएगा और हो जाएगा -3, एंड यहां पर 4 आ जाएगा और हो जाएगा -4, राइट। तो ये दो सोल्यूशन हो गए मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे x के दो वैल्यूज आएंगे, एक आया -3, एक आया -4, राइट। और यही स्टेप्स हम आगे दोस्तों फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कोने में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर उसको स्प्लिट अप करेंगे, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल देता हूं जल्दी से, सिंस वी हैव सम टाइम, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से द एग्जांपल इज 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। अब मुझे बताओ क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 into 5, 2 into 5 दैट बिकम्स 10। अब हमें 10 को ऐसा स्प्लिट अप करना है कि हमें 7 मिले, ओके। तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है। पहले 1 into 10 से चालू करो, तो स्टार्ट 1 से करने का। 1 into 10, क्या इसका एडिशन और सबट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मुझे 7 देता है? बोलोगे नहीं सर। 2 से चालू कर दे, 2 into 5, क्या 2 और 5, 2 into 5 क्या मुझे 7 देते हैं? आप बोलोगे यस सर, ऑफ कोर्स। तो ये 7 को लिख सकते हैं 2 + 5, बाहर x वैसा का वैसा, यहाँ 5 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट अप करो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो? आप बोलोगे यस सर। अब दो ब्रैकेट्स जब हमने बना लिए, तो ये और ये दो ब्रैकेट्स, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ 2 और x कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 1। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, राइट, तो x + 1, राइट। तो ये हो जाएगा x + 1 बाहर, और ये हो जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0। फिर x + 1 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे, एंड 2x + 5 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे, एंड यू विल हैव x इक्वल टू -1 फ्रॉम हियर। यहां से 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एंड x विल बी -5/2, राइट। सो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन को भी रिवाइज कर लिया। x is -1 and x, दूसरा वैल्यू ऑफ x is -5/2, okay। So with this guys, we complete the second chapter, second lecture of a maths 1, right। maths 1 का second chapter quadratic equation का रिविजन अड्डा में हमने 15 मिनट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली रिविजन कर लिया है, okay। I hope this helps you in your exam। इस रिविजन लेक्चर को आप एग्जाम के पहले जितनी बार हो सके उतना सुन लो। पूरा चैप्टर अगर देखने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, 15 मिनट में पूरा चैप्टर मस्त रिवाइज करो और एग्जाम में जाके अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ओके। सो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बटन नीचे है, राइट, यू नो दैट। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन to get notifications when we put educative content. Thank you so much for watching.